पुत्र आत्मा को इजाजत दीजिए आपके हृदय को छूने की इजाजत दीजिए, अपने मन को शुद्ध करने की इजाजत दीजिए। Give the Holy Spirit permission to touch your heart, to touch your mind, to give him permission। पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए आपके जिंदगी में। In your life, allow him to mold you, allow him to make you। हालेलुया। उसको इजाजत दीजिए आपकी जिंदगी में आने का, आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए, आपको उसके जैसा बनाने के लिए इजाजत दीजिए उसको। He will never force himself on anybody। Holy Spirit doesn't force himself on anyone. He wants your permission. Could you say, Holy Spirit, come and touch my life. Holy Spirit, come and mold me। See, there's the presence of God in this place right now। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। परमेश्वर किसी पर कभी भी दबाव नहीं डालता है, किसी को फोर्स नहीं करता है कि आप मेरे जैसा बनो, फोर्स नहीं करता है। वो सिर्फ कहता है, वो सिर्फ बात करता है आपसे और आपकी इजाजत चाहता है। He wants your permission। Yes, come Lord, come Lord। Yes God, hallelujah। Yes God, let the Lord move you, come on। तू मेरा बल है प्रभु। Let the Holy Spirit speak to you। तू मेरा बल है प्रभु। Come on, God is going to move in your hearts at this moment। तू मेरा बल है प्रभु। What can you do without him? तू सर्वबल
उसको इजाजत दीजिए, उसको इजाजत दीजिए. Give him permission into your family. Let him come in your family. Give him. Tell him you're welcome in my life. You're welcome in my family. I want you in my family. I want you in my heart. I want you in my thoughts. मेरी सोचों को छू लो, मेरे ख्यालों को छू लो, मेरे हृदय को छू लो. इजाजत दीजिए उसको. Holy Spirit, संग मेरे दूर सदा. Oh, Holy Spirit, Shialema Sandalaya Mushtavi Sweet Jesus. Songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust. I will worship you. Lift your hands to the Lord. Lift your hands. Just lift your hands, everyone. Lift your hands. अपने हाथों को ऊंचा उठाइए. The Lord just wants that. He just doesn't want a duty, you know who He wants. Shivivara Saman Rastaveki. Rayando Marastore Rastaveki Amondroshta Paraka Yiswade. Shenamandras Penamandras Shinabalabala Barakashi Malabala. The presence of the Lord, come on. And the presence of the Lord fill you. Come on, just lift it up. You know, when you lift up your hands, something is happening. Just lift your hands. Just lift your hands and receive from the Lord. Receive from the Lord right now. And to all in His full of surprises, it is present. Let's
presence is here. So thick, so beautiful. So beautiful is His presence. You are getting healed right where you are sitting. It's touching you right where you are sitting. It's healing you right where you are. He's doing miracles right where you are right now. आप जहां पर है परमेश्वर आपको छुड़ा है. आप जहां पर है परमेश्वर चमत्कार कर रहा है. जैसे आप आराधना करते हैं, जैसे आप उसकी ओर देखते हैं, चमत्कार हो रहा है. I pray the Holy Ghost will fall upon people even in this last days in such a way like never before. पवित्र आत्मा हर एक पर आएगा जैसा कि कभी नहीं आया था. जो हृदय परमेश्वर के लिए रुके हैं उन पर पवित्र आत्मा की शक्ति और समझ ऐसी आ जाएगी. Life transforming power of the Holy Spirit, life changing
there's an impartation happening.
I see many people have received healing in their bodies while they are sitting down there. जो लोग बैठे हैं उनको परमेश्वर ने ऑलरेडी चंगाई दी है, ऑलरेडी there is healing in your body, and already the Lord has given you deliverance for the situation you are going through. He wants to feel you. He wants to feel you. It's amazing how He honors you when you trust in Him. It's amazing how He honors you while you trust in Him. It's amazing. जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपकी आदर करता है। आप उस पर विश्वास करके कुछ बात करते हैं ना, उस बात को वो ऑनर करता है। I know this is speaking to somebody in this place. Trusting in the Lord, you have made some declarations in your life, and God will honor that. He will honor your faithfulness. People watching me live, you have been faithful to the Lord. You have trusted in the Lord. God honors your words. God honors what you do. He will reward you. वो ही आपको इनाम देगा। विश्वास करो उसके ऊपर। ये आपका समय है। It's your moment. It's not money that you need. You need the presence of God. That's all. His presence will bring in the supply. You say you are weak, but God says, I am your strength. You say you don't have, but the Lord says, I am your shepherd. You shall not lack. You say, I am confused, but the Lord says, I am the great I am. In the presence of God, there is no confusion. आप कहता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू बलवान है। आप सोचते हैं कि आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन एक्चुअली आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में सब कुछ मिलता है। उसके चरणों में सब कुछ मिलता है। This is what you need. This is what people need. You need the presence of God. You don't need anything else.
यीशु मसीह आपकी जिंदगी को भी इस तरह बदल देगा कि परमेश्वर की उपस्थिति का नशा आप पर चला जाएगा। You'll be drunk in His presence. Turn the water into wine. तू मेरा भला है तू मेरा भला है तू मेरा भला है तू मेरा भला है। See you feeling His presence. Take it all, Lord. All yours. Honor, glory, everything. Worship. It's yours. Yours. It's yours. Hallelujah. Hallelujah. So beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Yeah, see the song is coming. Just sing. See, the Lord is giving you songs for you. Beautiful. Sundarame. Beautiful. Atishayame. Hallelujah. Hallelujah. We need to sit in His presence. I don't want to break this thing, but we will just allow Holy Spirit to lead us. You can sit, you can stand, you can kneel, whatever. I don't want you to be disturbed from the presence of God. I told you He's full of surprises. Just wait in His presence. Just wait in His presence. So sweet. Thank you, Lord. I think I don't need to say that you are welcome in this place. God has already made it very clear that all of you are welcome here. परमेश्वर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि आपको यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि आप लोगों ने पवित्र आत्मा की स्वागत की है। हालेलुया। Just keep playing those strings, brother. Just keep playing. Clap your hands for Brother David. He's doing a good job. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Well, this is Resurrection Sunday, so we are going to read what the Lord just put on my heart. I'm just going to read it. Matthew chapter 28, verses 1 till 8.
Matthew chapter 28, verse 1. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the women, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, come and see the place where the Lord lay. Sorry, I didn't give you time to read that. Could you read from verse 1 in Hindi? सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पै पड़ते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कब्र को देखने आई बाद में। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ। क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहिरुए कांप उठे और भूकंप मुक्त समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तू यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है था तू ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मुक्तों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and went to bring his disciples word. Verse 8. वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर कहा, उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों, से जाकर कहो कि गलील को चले जाओ, वहां मुझे देखोगे। Okay. Hallelujah. 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 मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं ये क्या पढ़ा है, लेकिन थोड़े लोग ये नहीं जानते। Some people don't know it. And sometimes it is a reminder for us that we have to read these things because it is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है और हमको ये पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं हमको याद आता है कि परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है, कहाँ है, क्या वो मरा है, क्या वो जीता है। हालेलुया। यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मारा गया, वो क्रूस पर हमारे लिए मरा। हमारा सारा पाप और हमारा सारा श्राप, हमारी सारी पीड़ा, कष्ट उठाकर उसने हमारा कष्ट उठाकर क्रूस पर हमारे लिए जान दी। उसको क्रूस से उठाया गया और उसको कब्र में डाला गया। जब उसको कब्र में डाला गया, उस कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा और उसको ऐसा सील किया कि कोई उसको खोल नहीं सकता है। जब कोई मर जाता है उसको दफनाया जाता है, थोड़े लोग जलाते हैं, लेकिन यहूदी लोग अपने लोगों को कब्र में डालते थे
स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस को लेकर क्या बोलते हैं आप? लौंग, लौंग, सिनेमन, सुगंधी वस्तुओं में, स्पाइसेस में उस डेड बॉडी को, मरे हुए व्यक्ति को उस सुगंधी वस्तु में सराउंड करके, उसको लगाकर, उसको व्हाइट लिनन कपड़े में, सफेद कपड़े में ऐसा लिपटे हुए उसको कब्र में डालते थे और पत्थर उसके ऊपर रखकर लोग चले जाते थे। शुरू से पहले, शुरू से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जब उसको दफनाया गया, कब्र में डाला गया, कि कोई उठ सका। इसलिए लोग मृत्यु को डरते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे कब्र में डाला जाएगा, मेरा और कुछ कहानी नहीं रहेगी, खत्म होगा सब। लोग सोचते थे, अभी भी थोड़े लोग ऐसे सोचते हैं, मृत्यु आया तो सब कुछ खत्म हुआ। They think that death is the end of everything. उनका गुनाह नहीं है, क्योंकि शुरू से लोग ऐसे ही मरते आए हैं, और जब लोग मर जाते हैं उनको वापस कोई देख नहीं पाता है। उनके परिवार लोग रोते उनके लिए, मिस करते हैं उसको। हालेलुया, वो रोते हैं उसके लिए, मिस करते हैं, दुख होता है क्योंकि हमारा परिवार का फैमिली मेंबर, मेरा क्लोज वन कोई मर गया और कुछ भी भरोसा नहीं है कि वो वापस मिलेगा, इसलिए लोग डरते थे। परमेश्वर ने लेवी शास्त्र में, परमेश्वर पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को कुछ कहा था। I think it's in Leviticus 23. परमेश्वर ने लोगों को कहा कि ये जो उत्सव है, आपको ये उत्सव निभाना है। पुराने नियम में थोड़े उत्सव थे, 7 मेन उत्सव थे उनके, कि उनको निभाना था। एक था पास ओवर, उसका मतलब है पास्का में से कॉन्कनी। उस समय पर एक मेमने को लेकर उनको घर में लाना था, उनका लहू बहाना था, उसका लहू दरवाजे पर लगाना था। आपको पता है ना ये उत्सव। उसके बाद नेक्स्ट डे और दूसरा उत्सव था अनलेवन्ड ब्रेड। वो जो उमेर होते हैं ना, उसके बगैर जो रोटी बनाते हैं, वो रोटी बनाना था। वो जो उमेर है वो नहीं डालने का था। दे शुड नॉट पुट द यीस्ट इनसाइड। वो करने का था उनको द नेक्स्ट डे, पास ओवर के बाद नेक्स्ट डे। लेकिन उसके बाद तीसरे दिन उनको और भी एक उत्सव था। पूरी जो उनकी खेती की उपज होती थी, उसका एक पहला जो फूला था, द फर्स्ट शीप, दे हैड टू ब्रिंग इट टू द प्रीस्ट। खेती का पहला उपज। आपको पता चला क्या है? आम्ही किती मोठा कोणसाचे फेस्त, पण आम्ही कोणता ते दुसरे भाषेत मासे, राईट? कोणसा हाडटात आनी कोणसाचे ते घेऊन पादरी वाडे वयतालो, राइट? कोणसा घेऊन शेतातले। हाँ, सो परमेश्वर ने उन लोगों को कहा था, पूरी खेती का पहला उपज, आपका पहला जो फूला है, पहला जो शीप है, बंच है, वो आकर याजक को देना है। Please somebody control this children. They must be kept quiet. Maybe sister, you can just be there with them.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So ये परमेश्वर ने लोगों को कहा कि खेती का पहला, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पूरी खेती का पहला उपज पहला फला लाओ और याजक के हाथों में देना था। और याजक बाद में वो उठाकर स्वर्ग की तरफ देखकर पवित्र पिता परमेश्वर को या ऐसे वेव करते थे, ये खेती का उपज का पहला फूला, द फर्स्ट शीप ऑफ द फील्ड, एंड इट वाज कॉल्ड द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट पहला उनका। सो परमेश्वर को ऐसा वेव करके ऑफर करते थे। बाद में इस एक फूला की वजह से, ये पहला फूला की वजह से पूरा खेत को ब्लेसिंग मिलता था। Do you get it? Because of this one bunch of the first fruit, the entire field was blessed by God. Hallelujah. और परमेश्वर ने उनको कहा कि आपको ऐसा ही करना है हर एक साल. Every year you have to do it. And then there were other feasts that were following, that after the feast of the first fruit, there was supposed to be the feast of the Pentecost. Count 50 days. 50वें दिन पेंटिकॉस्ट का फीस्ट था, atonement और all the 7 feasts. Hallelujah. Okay. Now, when this happens, you have to remember that God was trying to speak something to the children of Israel which they did not understand. आत्मा की भाषा उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए परमेश्वर ने सिंबॉलिज्म को बताया था कि ऐसा आप करो, लेकिन उनको पता नहीं था क्या होगा। लेकिन जब यीशु मसीह मरा, जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया, कुछ अद्भुत सा हुआ, कुछ आश्चर्य कर्म हुआ उधर। It was a miracle. It was something that has never happened before. ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया, उसके सारे शिष्य रोने लगे, वो दुखी हुए, अभी क्या होगा। यीशु मसीह हमारे संग था तो हमको कितना अच्छा लगता था, वो हमारे साथ आता तो हमको खुशियां मिलती थी, उसकी उपस्थिति में हम आनंद उठाते थे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चमत्कार होता था, अभी क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा था मरने से पहले कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़े दिन आप रोएंगे, लेकिन आपको बाद में कंफर्ट मिलेगा, धीरज मिलेगा आपको। आप थोड़ा त्यों तुमचे बरोबर आसराव, थोडे तेंपाना वयतलो, पण मागीर हांव गेल्या उपरांत तुमी दुखी जातला, पण रोखडेच थोड्याच वेळान तुमकां परत बुजवण मेळटली। आपको धीरज मिलेगा क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। Now I am with you, but afterwards I will be with you and I will be in you. अभी मैं आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन बाद में आपके साथ भी होगा, लेकिन मैं आपके अंदर भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लोगों को, उसके चेलों को ये समझ में नहीं आया था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसके वचन पर उन्होंने विश्वास करने की कोशिश की। They tried to believe, but when Jesus died, they all went into the room and they closed the door. वो सब लोग दरवाजे बंद करे, वो अंदर रहे और उनको डर लगा। They were very scared now. Why? Because their leader is gone. उनका जो लीडर था यीशु मसीह, उनका जो गुरु था, वो अभी मर गया और वो डर के मारे, रोमियो लोगों के वजह से वो डरते थे और वो अंदर रहकर वो शायद प्रार्थना करते थे। आपने कभी डर से प्रार्थना किया है? डर के प्रार्थना किया है कभी? हाँ, डर के सेवा ऐसा किया है कभी? तो डर के जो प्रार्थना करते हैं वो भी परमेश्वर जानता है, लेकिन डर के प्रार्थना करना कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वो अंदर रहकर वो डर गए थे। लेकिन ये जो औरत थी, मेरी मैगदलेन एंड अदर मेरी, ये दो औरतें, वो
कब्र के पास गए क्योंकि उनको प्यार था परमेश्वर का। ये नहीं कि चेले प्यार नहीं करते थे। इट्स नॉट दैट द डिसाइपल्स डिड नॉट लव जीसस, बट दे व्हाट्स हैपनिंग। बट दिस टू वुमेन, ये जो औरत थी, ये कब्र के पास गए वो लोग। हालेलुया। कुछ बात औरतों में होती है जो मर्दों में नहीं है, जो परमेश्वर ने कास्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ बात मर्दों में है जो औरतों में नहीं है ऐसे। हालेलुया, आमेन। Women clap for the men. Men clap for the women. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So these two women, they were courageous, and they went to the grave. और वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? यीशु मसीह को तो अंदर डाला गया था, ओके, कब्र में डाला गया था। अरे ऐसा बात कभी हुई थी नहीं, कभी हुई थी नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। क्या हो गया? इतना बड़ा पत्थर, बोलो बड़ा पत्थर, ये बड़ा पत्थर कब्र पर डाला था। लेकिन जब ये दो औरतें वहां पर गए, उन्होंने देखा कि ये बड़ा पत्थर अभी हट गया है। बोलो हट गया। अरे कैसा हट गया और क्यों हट गया? क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या? और उसके ऊपर एक स्वर्गदूत वहां पर उस पत्थर पर बैठा था, इतना सफेद ढाल के उधर वो बैठा था। और वो देखा, कब्र में देखा यीशु मसीह नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? And another gospel it is saying they have taken away my Lord and I don't know where they have kept him. उन्होंने उसकी शरीर को, कभी किसी ने उसके शरीर को छुड़ाया, हमको पता नहीं है कहाँ लेके गए वो लोग। ऐसे ही दो औरतें सोचने लगे। बाद में वो स्वर्गदूत उनको ये जवाब देता है, और ये जवाब परमेश्वर आपको भी देता है। सुन ले, वो कहते हैं He is not here, He is risen. वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। Hallelujah! He is alive. He is alive. Hallelujah! Hallelujah! पौलुस कहता है फिलिपियों का 3 में, in I think it's in verse 10, he says that I may know Him and the power of His resurrection. मैं जानना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर को, और भी करीब मैं जानना चाहता हूँ, और उसके पुनरुत्थान का उसका पावर जो है। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, उसकी जो सामर्थ है मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, हालेलुया, एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग। Isn't that beautiful? Would you like to know that? That scripture, let's read that. Philippians chapter 3. Very powerful. I want you to read it in Hindi also. Philippians chapter 3 verse 10 says that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के Oh my God, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का। My God, look at that. Read it again. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है कि मैं उसको और भी करीब में जानना चाहता हूँ, उसके मृत्युंजय का, वो उसकी सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ, और
जीवनपणाचे बळ, त्याच्या पुनर्जीवन जीवनपणाची सामर्थ आव ओळखून सुद्धा, आव जाणा जाऊन सुद्धा. And many times we do not know the power of the resurrection of the Lord. And that's why we need to go again and again into the Word of God. हमको वचन में जाने की जरूरत है. We got to go again and again into this Word and know what the Word of God is saying. Hallelujah. And just as the angel of the Lord told these Marys that He is not here, He is risen. I want to tell you something today. मैं कुछ परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ. Sometimes we need to be reminded that Jesus is not in the grave anymore. Come on. कभी-कभी याद दिलाना है हमको कि परमेश्वर कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है. हालेलुया, हालेलुया. हम कलीसिया में आकर हम गाना गाते हैं, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है. मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है. Thank you Lord. Amen. Okay. मैं गाऊंगा मेरा यीशु जिंदा है. मैं गली गली में जाऊंगा, मेरा मेरा यीशु जिंदा है. मैं गाँव में जाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा है. मैं गली गली में जाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा है. मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है. आमेन. हालेलुया. मैं नाच उड़ कर जाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा है. मैं घूम फिर के कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा है. मैं नाच उड़ कर जाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा है. मैं घूम फिर कर कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा है. मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है. मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है. Amen. Hallelujah. अरे कलीसिया में गाना कितना आसान है. हाँ, कलीसिया में गाना कितना आसान है. लेकिन घर में जाऊं तो, बीवी के साथ बात करूं तो, पति के साथ बात करूं तो, माँ बाप के साथ बात करूं तो, सब कुछ मैं देखूं तो, निराशापन में आऊं तो, धीरज को खो जाऊं तो आसान नहीं है. My face becomes so low, my smile is all gone when I see everything around me. I become so low. That's why I need the word to remind me. इसलिए वचन की जरूरत है. हालेलुया. आमीन. मेरे साथ बात करना है, मुझे मेरे साथ बात करना है, मुझे खुद को ही बताना है, मुझे खुद को ही याद दिलाना है कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है. मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है और वो आने वाला है.
सामर्थ, we forget everything, and our heart begins to be heavy when we see things around us. हमारा हृदय बहुत ही दुखी होता है, हमारा मन बहुत ही दुखी होता है, हमको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है आपको? एक दूसरे पर चिढ़ते हैं, एक दूसरे का अंदर गुस्सा रखते हैं, परमेश्वर पर गुस्सा अंदर रखते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर अगर तू जिंदा है तो करके दिखाना। God, are you sleeping or what? क्या क्या इंसल्ट बनते हैं हम हमारे मुंह से, और ऐसे भी कहते हैं ये माझे काम केन्ना जावचे ना, ही वर्षा होळीच उरतली, राइट राइट। God encouraged Mary, God encouraged the disciples, God sent his encouragement for you and for me। परमेश्वर ने अपना सामर्थ, परमेश्वर ने अपना प्यार आपको और मुझको इस तरह दिखा दिया कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हमारे लिए क्रूस पर मरा। और जब मृत्यु की बात आती है हम सब सोचते हैं कि वो मरा ना, तो उसमें क्या भरोसा है, उसमें क्या होप है। But the Bible says that God is not the God of the dead, He is the God of the living. Hallelujah, hallelujah। जब मर जाते हैं कोई तो कुछ भी भरोसा नहीं मिलता है हमको। The Bible says that Jesus, when he died, he rose again from the dead and set people free from all their time, for all their lifetime they were in bondage of fear। वो बंधन में थे, डर के बंधन में थे, मृत्यु के बंधन में थे। वो सब लोगों को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। That all those who believe in Jesus, they will not perish but have everlasting life। Hallelujah, hallelujah। Ci mornam vietalin ata mornaci birat dismaci gorosna। You don't have to get scared. You don't have to get scared of COVID. You don't have to get scared of anything. Above all, don't get scared of things. Duesa kami beyond zaina, ani mornam ami beyond zaina. Kidak Jesu fondan gatlo, ani to fondan urona. Jesu jiwan zalo. He rose again from the dead. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Jesus went to the grave of Lazarus। Jesu Lazarusच्या पोटाची गेलो। He was already dead. Listen, he was already dead. Lazarus was already dead. वो मर चुका था, उसको 4 दिन हो गए थे। लाजर उसका दोस्त था, उसके दोस्त को मरने के बाद उसको कब्र में डाला गया। 4 दिन हो गए थे और वो अंदर था, सड़ा हुआ था। लाजर की 2 बहनें मेरी और मार्था रो रहे थे। मार्था आकर उसके साथ कुछ बात किया और बोला कि यीशु मसीह, मास्टर रबोनी, अगर आप यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मर जाता। My brother would not have died if you were here। अगर आप यहाँ पर होता तो मेरा भाई जिंदा होता, वो मरता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको ये जवाब दिया, जॉन 11:25 में, I am the resurrection and I am the life। आप पहुंचो पण आणि जीवित, जो कोण मुझे विश्वास ठेवता तो मेरा लिए जीवंत। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है वो जी उठेगा। अगर वो मरेगा तो भी वो जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई जिंदा है मैं मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। The greatest death we should get scared of is the death that is called as separation from God। Death is not the end. Death is for us Christians, we are only sleeping for some time। इसलिए बाइबल में जहां पर मृत्यु के बारे में लिखा है वहां पर
People are just sleeping, you know. Every time we talk about death, it is only sleep. They're just sleeping. One day they will arise again. एक दिन वो जी उठेंगे. 1 Thessalonians 4:14 says that we should not be as if there is no hope. Those who are dead, they are only sleeping. We should not be as if we do not have hope. Hallelujah. यीशु मसीह में हमारा भरोसा है. क्यों? क्योंकि वो उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको कब्र में डाला गया और वो जी उठा. उसने मृत्यु को हराया है. He has defeated death. Hallelujah. So we don't have to get scared of death. And now you don't get scared of death, but then there is something that we do every day. हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारा परमेश्वर अभी तक क्रूस पर ही है या फिर उसको कब्र में डाला गया है. हम ऐसे जीते हैं. यीशु मसीह जी उठने के बाद जो सामर्थ Romans chapter 8 verse 11 says, the same spirit that raised up Jesus from the dead, जो आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, अगर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, वो भी आपके इस शरीर को, आपके शारीरिक मन को जान देगा, जीवित देगा. हालेलुया. जी उठाएगा आपको वो भी. हालेलुया. इसलिए ये जो उत्सव था, ये फर्स्ट फ्रूट का जो उत्सव था, पूरी खेती में से पहला उपज लाकर याजक के हाथों में देना था और याजक ऊपर करके ऐसा पिता को ऐसा वो ऑफर करता था. वैसे ही यीशु मसीह पूरी खेती हम हैं और खेती की पहली उपज यीशु मसीह है. He is the first fruit that rose from the grave. वो जी उठा पहला, और अगर वो जी उठा तो उसकी वजह से हम सब जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर हम भी जी उठेंगे. हालेलुया. जिसकी वो खेती का पहला उपज, जिसकी वो खेती का पहला फूल, वो परमेश्वर को एक्सेप्ट हुआ और इसलिए पूरी खेती को ब्लेसिंग मिला. यीशु मसीह के वजह से पूरी धरती को ये आशीष मिल गई. उसके जीवन के द्वारा हर एक को जीवन मिला. हालेलुया. अगर यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस पर मारना था तो हमको क्या होप था, हमको क्या भरोसा था, क्योंकि वो भी मर गया. जिसने इतना अच्छा किया था, पूरे धरती के लिए इतना अच्छा किया था, वो भी मर गया. लेकिन वो मर ही नहीं गया, वो तीसरे दिन जी उठा. हालेलुया. और वो जिंदा है. हालेलुया. वो जिंदा है, और अगर वो जिंदा है, वो आपके ये शरीर को छू सकता है, वो आपके इस मन को बदल सकता है. अगर वो जिंदा है, वो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है. अगर वो जिंदा है, जो आप ढूंढते हैं आपको मिल सकता है. अगर वो जिंदा है तो आपको जो कमी है वो बढ़ सकता है. अगर वो जिंदा है तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा है व्यक्ति, वो बदल सकता है. Because our God is alive, and our God is not just alive, वो जी उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ था, और उसके बाद उसने कहा कि मैं अभी जा रहा हूं मेरे पिता के पास, लेकिन आप इंतजार करो. लिसन केयरफुली. आप इंतजार करो. यू वेट फॉर द प्रॉमिस. जो वादा मैंने किया है, वो वादा मैं पिता से मांग कर वो वादा आपको मिलेगा. यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग from my father. You wait for the promise, and Jesus says, I am going, but I will send my Holy Spirit. आप सामर्थ पाओगे. हालेलुया. You shall receive power after the Holy Spirit is come upon you, and you shall be my witnesses. Hallelujah. 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 आप सामर्थ पाओगे. पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आप मेरे गवाह बनोगे. हालेलुया. My dear people, मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहनों, हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी कठिनाइयां आने दो, हमको बार बार याद दिलाना मेरा यीशु जिंदा है. सिर्फ कलीसिया में गाने के लिए नहीं है. ऐसे गाने हम सिर्फ कलीसिया में ही नहीं गाते हैं. ये गा
आकर हम नाचते हैं, बहुत अच्छा है। आज हम गाए ना, मैं आशिक तेरा, हाँ आज हम गाए बदले 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 यीशु नाम, हाँ हमने गाया ना ये सब सिर्फ कलीसिया में ही नहीं, लेकिन जब हम घर जाते हैं, the reality hits our face when we are at home, when we are at our workplace, हमारे काम की जगह पर ये रियलिटी हमारे सामने आ जाती है। घर में ये रियलिटी हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि घर में जो कुछ होता है, वर्कप्लेस में जो कुछ होता है, बाजार में जब आप जाए तो होता है। Then on the road when you are being confronted with different kinds of drivers and riders, रास्ते में भी ये रियलिटी आपको हिट होती है, तब आपको पता करना है, तब आपको याद दिलाना है कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। My God is alive. My God is alive. If people are hurting you, if people are doing something wrong against you, if people are talking falsely something bad about you, you say my God is alive. My God is alive. अगर कोई भी आपके विरुद्ध कुछ करता है, आपके विरुद्ध बात करता है, आपको कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ अपने आप को याद दिलाओ, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। My God is alive. मेरा यीशु जिंदा है, और जिंदा है वो देख सकता है, जिंदा है वो सुन सकता है, जिंदा है वो महसूस कर सकता है। इसलिए वो जिंदा होकर हमारे बीच में आता है और अपना प्रेजेंस को मैनिफेस्ट करता है। और जब वो आता है, जो पीड़ित लोग हैं उनको चंगाई मिलती है, जब वो आता है जो दुखी लोग हैं उनको आनंद मिल जाता है, जब वो आता है जिसके जीवन में कमियां हैं उसका जीवन बढ़ जाता है, जब वो आता है जिसके जीवन में अंधकार है उजाला आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जिंदा है, इसलिए हम जिंदा परमेश्वर की पूजा करते हैं। We serve a living God, हालेलुया, जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। The Bible says, dear people of God, do not live as if you do not have hope. Christ in you is the hope of all glory. यीशु मसीह जो आपके अंदर है वो सारी महिमा का भरोसा है। जो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, शरीर में वो सिंहासन पर बैठा है और वो राजाओं का राजा है। वो आपके और मेरी तरह ऐसा कितने ज्यादा कहा है, कितने ऐसा नहीं करता है, अरे क्या होगा क्या होगा, ऐसा नहीं। He is never worried about anything. वो बैठा है, is resting on his throne, अपने सिंहासन पर बैठा है। He's the king. सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, आपके सोचों को जानता है, आपके दुश्मन के सोचों को भी जानता है। जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो कभी भी उसको लज्जित नहीं करेगा, क्योंकि वो जिंदा है। He will fight your battles for you. वो आपकी लड़ाई वो लड़ेगा, आपके जीवन को बदलेगा। Stand up in the presence of God. Shabaraka sekeli moshtu ekeli. Hallelujah. आपकी कमजोरी में वो आपकी ताकत है, आपका बल है। Come on, your God is alive. Tell somebody Jesus is alive. Come on, tell him Jesus is alive. Tell the next person next to you, say, don't worry, Jesus is alive. Our God is alive. Hallelujah. अरे ऐसा वैसा नहीं है आपका परमेश्वर, साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। मनुष्य आपको झूठ कहते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। वो सच्चाई है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो खुद ही सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। अगर वो कहता है कि ऐसा होगा तो वो निभाएगा अपना वादा। हालेलुया।
भरोसा था। दुनिया में कितने लोग आए और गए, वो मर गए, उनको कब्र में डाला गया, लेकिन किसी की कब्र अभी तक खाली नहीं है। सबकी कब्र में जो गए हैं ना, वो मिट्टी हो गई है, मिट्टी, और अभी तक वो मिट्टी वहां पर ही है। सबकी जो कब्र में गए वो मिट्टी हो गए, किसी का गोबर हो गया है, वो गोबर भी उधर है और वो मिट्टी भी उधर है, लेकिन यीशु मसीह को अंदर डाला गया। हालेलुया। Psalm 16 verse 10 says, "You will not leave your Holy One to see corruption. His body will not get corrupted." उसका शरीर सड़ा नहीं। हालेलुया। वो कब्र में रहा नहीं, तीसरे दिन उसका शरीर, वो खुद ही जी उठा, वो खुद ही जी उठा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का कब्र खाली है, कब्र खाली है। हालेलुया। और वो स्वर्ग में प्रवेश किया और पिता के राइट हैंड पर बैठा। सारा अधिकार पृथ्वी पर, स्वर्ग में, सबके ऊपर अधिकार वो ही चलाता है। Come on, clap your hands for the Lord. All the authority belongs to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अगर कुछ भी झूठ ऐसा आता है आपके मन में कि आपका कुछ नहीं होगा, आपका तुझे काम जाऊचे ना, तुझा मुलगा सुधारचो ना, तुझा भाऊ सुधारचो ना, तुझी बाय सुधारची ना, तुझे शेजारी सुधारचे ना, सगळे सुधारतले कित्याक तुझो जीसू शिवो आसा. Your God is alive. Hallelujah. Receive the strength from Him now. Lift up your hands. Receive the strength from Him. touchy contact है, उसका बल ले लो. कभी कभी हम ऐसे निराश होते हैं, ऐसे निराशा में आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है. क्षमा मांगो परमेश्वर से. हमारा रिएक्शन जो होता है हमारे सिचुएशंस को, दुखी हो जाते हैं हम. रिएक्शन हमारा दुखी का, कभी कभी गुस्से का, कभी कभी निराशा का रिएक्शन होता है, क्योंकि हम मनुष्य भूल जाते हैं. इस समय परमेश्वर आपको याद दिलाता है, मेरा बेटा मैं जिंदा हूं ना, मैं हूं ना, मेरी बेटी मैं जिंदा हूं ना, मैं हूं ना आपके लिए. तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तेरी कमियां को मैं भर दूंगा, तुझे मैं बल दूंगा, तेरा हाथ मैं कभी छोड़ूंगा नहीं. आत्मा में महसूस करो उसको इस समय. जस्ट रिसीव दैट फ्रॉम द लॉर्ड राइट नाउ. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु. चल लॉर्ड कम ऑन. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु. हालेलुया. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु. Lift your hands for some moment. Lift your hands, lift your hands. Yes, yes, Lord. तू मेरा बल है प्रभु. Come on. तू मेरा बल है प्रभु. इसको कहो, come on. तू मेरा बल है प्रभु. उड़ती लहरों में, डूबती नैया में, उड़ती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान.
हालेलुया। ऐसे ही खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर तू जिंदा है, यीशु मसीह तू जिंदा है। ये हमें याद दिलाओ हर दिन। पवित्र आत्मा हम इजाजत देते हैं हमारी जिंदगी में आकर हमको याद दिलाओ। हमारे मन में आवाज करो पिता, हमारे कानों में आवाज करो पिता कि तू हमारे साथ है। Lord, speak to us. Holy Spirit, speak to us every day. We need to be reminded that you are alive and you will do it. You will do it. You will keep us in Jesus' name. Amen. Amen.